तो अब आजकल कोई डाइट या फिटनेस की बात करता है तो उनके कई कारण होते हैं, पर मेरे हिसाब से जो कॉमन कारण है वो आइदर एस्थेटिक है, माने कि एक साल पहले उन्हें शादी करनी है तो 1 साल पहले से वो डाइटिंग शुरू करेंगे। आजकल एक नया ट्रेंड है कि लॉन्जिटिविटी है, मतलब 40 वाले को 30 वाला दिखना है, 30 वाले को 20 वाला दिखना है। तो ये जो ट्रेंड चल रहे हैं तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो लॉन्जिटिविटी ट्रेंड और दूसरा जो क्विक फैट लॉस जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो सेकेंडली करेंगे। पर आपसे पहले मैं लॉन्जिटिविटी की बात करूँगा कि उसका ये ट्रेंड है वो क्या है, क्या सच है क्या गलत है, वो मैं आपसे जानूँ। See, longevity is a concept. ट्रेंड वो अब बना है बिकॉज ऑफ पीपल लाइक ब्रायन जॉनसन और 2-4 ऐसे चुनिंदा लोग हैं उनके कारण। बट लॉन्जेविटी इज ए कंसेप्ट। लॉन्जेविटी क्या बोलता है कि आपको जीना है एंड विथ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट शुड नॉट बी जस्ट ईयर्स बट गुड क्वालिटी ऑफ ईयर्स। और हिस्टोरिकली पर्सनली जो मेरा हमेशा से मानना था कि लॉन्जेविटी मीन्स कि एक ह्यूमन बीइंग जो है ही कैन लिव अप टू 120 ईयर्स इन गुड हेल्थ। क्योंकि अगर आप उसकी कंबाइंड ऑर्गन्स की हेल्थ देखोगे आप तो एक पॉइंट पे आपकी बॉडी ग्रो करती है और उसके बाद में सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं एंड देन देयर इज अ हेफिक लिमिट। उसके बाद में आपके सेल्स डिवाइड नहीं होते और सबसे लास्ट तक जो कि आपका ऑर्गन बच सकता है दैट इज योर ब्रेन। बट उसमें भी अप टू 120 ईयर्स वेयर योर neurons can sustain. After that you will start losing memory and your quality of life and brain itself will die. So 120 year is a physical limit for your brain to survive. So that's what the scientists have pegged it. So for me, living up to 120 years in a healthy manner, like good quality without having different kinds of chronic condition, that for me is longevity. अब उसको लोगों ने बना दिया है कि नहीं मुझे मरना ही नहीं है, don't die. And then people like कि नहीं हाँ 350. See that becomes a fact. That is basically something you're pulling people into some sort of like a euphoria, and because nobody has seen it, right? So exactly speculation, and nobody knows what's going to happen. So a lot of these cryopreservation जो कि लोग अपने आप को preserve कर रहे हैं for 300 years, and in the hopes कि after 300 years somebody will revive them, right? So these are all speculation, and उसमें भी सबसे बड़ी problems ये है कि now people are seeking these non-FDA approved treatments, private islands पे very expensive treatments, follistatin, then people are replacing their plasmas and MSCs and ESCs. All these can be extremely dangerous because you're messing around with your body's physiology, and the data is not there to support the results of these practices in a longitudinal manner. तो जब आप शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ जैसे rapamycin का भी रिसेंटली ये हुआ था, फॉर सो लॉन्ग द साइंटिस्ट वर फिक्स्ड कि बॉस rapamycin is amazing, the drug can improve your AMPK pathway, again not getting into technicalities, and that this drug can potentially increase the lifespan. Brian Johnson was taking drug for 5 years. Now he has quit it and he's saying I don't want to take rapamycin because the side effects are not worth taking the risk. अब 5 साल से जो ये लोगों को प्रीच कर रहा था और 5 साल से लोग जो ले रहे थे, they would feel cheated. They'd be like, what the fuck? You were having side effects, but we continued on the treatment because Brian Johnson said so. So I'm like, dude, जब पता नहीं है, जब रिजल्ट्स नहीं है, खुद के बेसिस पे आप ये सब डेटा सिंथेसाइज करके बोल रहे हो कि मुझे लगता है कि दिस इज अमेजिंग एंड पीपल शुड डू इट, दैट इज डेंजरस लाइन ऑफ थिंकिंग. Then you ought to hold people like these responsible. That's what I'm saying. Best idea is to stick to what the government bodies are doing. See, they are also brilliant scientists, right? They are not making Instagram reels or videos like we are, but that does not mean that these guys are not smart. They are some of the most brilliant people on the planet. And if they've written those guidelines over decades of researchers and their experiences, we ought to respect that. When you don't respect these bodies, you basically disrespect the hard work of really hardworking, intelligent people who are consistently trying to improve humanity, and you are bringing a disgrace to their lifetime's work. They are the unsung heroes. मैं तो उन्हें ऐसे ही कहता हूँ कि जो लोग बैकएंड में जो एकेडमिशियंस होते हैं उनका कोई मतलब शायद नाम लेते हैं, कोई साइटेशंस होते हैं उसमें छोटा नाम होता है, पता भी नहीं होता किसी को क्या होता है. So they are the unsung heroes. You will never find this person on social media. Her name is L.M. Burke, Louise M. Burke. Okay, so when you don't know, right? She's the most amazing person in the whole world. For me, she is like my guru. You can't find her. That's where I learned my entire sports nutrition. Okay. She's an old woman, I think some 60-70-year-old woman, Australian doctor. You'll not find her anywhere. You'll just find her like books and research papers, and
she's published like So numerous much papers. research, yeah. So much. मैम आप कुछ कहना चाहेंगे लॉन्जिविटी? लॉन्जिविटी एंड एंटी एजिंग, क्योंकि हर चीज़ बीइंग अ फीमेल मुझे लग रहा है कि दैट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग पुल आल्सो कि भाई मुझे डी-एज करना है ऐसा कुछ. हर किसी को फॉरएवर यंग ही रहना है. आई ब्लेम इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड एवरीथिंग फॉर दैट ज़्यादा. क्योंकि अब हर किसी को अपनी ओरिजिनल, किसी को भी अपनी बॉडी, अपना फेस कुछ पसंद ही नहीं है. हर किसी को बदलते ही रहना है. उसी के चलते इतने ज़्यादा इवन डर्मेटोलॉजिकल भी इतने ज़्यादा जो ट्रीटमेंट्स आए हैं, या मल्टीविटामिन कॉकटेल्स, लोग ऐसे जैसे बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो ऐसे, लाइक देयर आर किटी पार्टीज हैपनिंग on with where people are taking infusions of multivitamins and everything. I read, yeah. Botox. There are like girl pan dates happening over Botox. Everyone is doing that. Yeah. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि I look at it from a point of standard insecurity. Okay. क्योंकि हम पर इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हर तरफ से यही बात की हमें हर कोई बता रहा है कि यू आर नॉट इनफ. जहाँ जाओ वहाँ हमें हर जगह यही बताया जाता है कि तुम्हारी स्किन खराब है, तुम्हारे बाल खराब है, तुम मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, व्हाटएवर, टॉल हो तो भी प्रॉब्लम है. तो हमें खुद से हम प्यार करना, या वी हैव स्टॉप लाइकिंग आवरसेल्व्स. और जहाँ पर भी देखे वहाँ पर भी हमें यही रीइंफोर्समेंट मिलता है मैसेजेस का कि तुम घटिया ही दिख रहे हो. तो तुम जो भी करोगे जाके इधर आप मेकअप करोगे या फिर इस तरह का कुछ करने की कोशिश करोगे कि जो मुझे अचानक कुछ अलग कर दे. ये इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग समझते नहीं है कि नन ऑफ दिस इज़ लास्टिंग. अब एक तो हो गया कि हमने जैसे मुझे दुबले होने के लिए मैंने बैरियाट्रिक सर्जरी करवा ली. आई डिड अ गैस्ट्रिक बाईपास. ओके कि मुझे एकदम फटाफट दुबला होना है. पर बाद में पता चला कि मेरा 20 किलो वज़न कम हुआ, पर मैं ही रही. मेरी जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो कहीं नहीं गई. व्हेन आई लुक इन द मिरर आई एम स्टिल लुकिंग फैट टू माई सेल्फ. तो प्रॉब्लम यहाँ है कि हर तरफ हमें यही मैसेजेस मिल रहे हैं कि तुम्हें कुछ तो करके खुद को बदलना है. अगर आई एम फाइन विद दिस सेम मोल ऑन माई नोज, यू कांट बी. ये दाग है तुम्हारे चेहरे पे, इसको हटाना है. यही मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स द फैक्ट कि हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन आजकल सबको सोशल मीडिया से ही मिल रही है, जहाँ पर एब्सोल्युटली अनवेरीफाइड चीज़ें हैं. हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन सच कह रहा है, कौन गलत कह रहा है. हम जैसे कुछ लोग हैं कि बताए अरे ऐसा नहीं होता है, समझो बात को. पर वी आर वेरी फ्यू. मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले हज़ारों लाखों में हैं. तो वो भी एक अलग चैलेंज आ जाता है. पर आई ब्लेम प्राइमरीली सोशल मीडिया एंड द मैसेजिंग. क्योंकि जो हमारे मार्केट्स आज के लिए सारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे अगर सब लोग खुश हो जाए अपने, लाइक यू नो, इफ़ आई बिकम हैप्पी एज अ वुमन, इफ़ आई बिकम हैप्पी विथ माई ओन सेल्फ, I will stop buying everything. I don't need to, right? The economies will collapse. The world will collapse. So it's the job of the markets to make you feel insecure all the time, and everything is an agent of that economy. Okay, got it. कैपिटलाइजेशन वहीं से आएगा फिर. यार, when it comes to longevity, I have a couple of pointers here. One, the audience is very in a conflict within themselves. If you think about it, we all are playing don't die game on a daily basis. In fact, हमने हमारा हेल्थ का स्टैंडर्ड इतना नीचे कर दिया कि हमें रोज मौत नहीं आती है तो वी आर हैप्पी. वी आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग. अगर मरे नहीं, आज जीत लिया, चलो मजा आ गया. बट एट द सेम टाइम पीपल डोंट रियलाइज के वट एवर थिंग्स दैट वी एंजॉय इन आवर डे टू डे लाइफ्स, उसका एक एंड है. दैट्स व्हाई वी एंजॉय इट. इफ देयर वाज नो, इफ इट वाज इन्फिनिटी, हम नहीं एंजॉय करने वाले थे. आई डोंट, हैव यू गाइस वॉच्ड दिस फिल्म कॉल्ड मैन फ्रॉम द अर्थ? Both the parts. Yeah. People should watch that movie. They would know, and it's such a beautiful movie about I don't want to spoil it for people. People should watch it जिनको anti-aging और longevity का बहुत कीड़ा है. And रही बात, if there was anything on the in the science about anti-aging, all the basics: hydrate, sleep well, do resistance training, अच्छा से protein meet करो. It's all that, nothing fancy. But where's the fun in that? वो तो बोरिंग है. वो बोरिंग है. हमें सब कुछ इंटरेस्टिंग भी तो चाहिए. अगर तुम मुझे बता रहे हो कि अमिता 30 ग्राम फाइबर रोज खा ले, यू नो, तो तेरा पेट साफ हो जाएगा एंड योर स्किन इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू इम्प्रूव, राइट?
What is the fun in eating that? मुझे चूरन चाहिए रात को रोज. कुछ तो सीरम चाहिए जो मैं चेहरे पे लगाऊं, कुछ एक विटामिन सी चाहिए जो मैं लाइक यू नो सप्लीमेंट लूँ, और फिर मुझे कोई तो पोषण चाहिए. समथिंग नीड्स टू कम इन अ बॉटल, इन अ पैकेट. मुझे वो धनिया पुदीना नहीं खाना है, खाना नहीं है उसका, एटलीस्ट मैं शॉट बना के पियो, उसमें तो लगता है कुछ किया. ये जो है ना वो चैलेंज है.